In today's class, we're going to do example number 2, which is all about congruency. में congruency test करनी. What is congruency? Congruency is when two objects are the same, are just the same. कोई भी objects बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल same to same होंगे, उन्हें हम congruent objects कहते हैं. यहाँ मैं ऑलरेडी बताया था कि congruent है, लेकिन वो कह रहे हैं प्रूफ करें, बताएं क्यों है. Given that ABCD and WXYZ copy and complete each of the following. इस ऑब्जेक्ट का नाम ABCD. जब आपको बोले ABCD तो आप अपने फिंगर्स को मूव करें लाइक A, B, C and D. And they're saying it WXYZ, WXYZ. So that you know what you're doing. इन दोनों बातों के दरमियान एक 3 डैशेस बने हुए. We have seen the last class कि the 3 dashes mean congruency. They're telling us that ABCD and WXYZ are congruent objects. Now, this is just the way they're teaching us how to work out. मैंने बताया जब भी हम congruency test करते हैं, whenever we are testing congruency, we first compare the vertex. सबसे पहले हम vertex compare करेंगे. Second हम compare करते हैं किसको? We compare the, what do we compare? Who can tell me? Sorry, first is the shape, second is the vertex, sorry, and third is the size. और इस size में हमारे पास 2 चीज़ आती हैं. One is the angle and the other is the size. So shape तो मैं already बता दी. अगर आप देखें मैं बता दिए कि ABCD is equals to WXYZ, तो ये shape वाला already compare हो चुका है. See, we don't write it again. You will skip the first one. अब जो सेकेंड मोस्ट चीज हमारे पास लेफ्ट ओवर है वो हमारे पास वर्टेक्स है. ठीक है, वर्टेक्स यानी कॉर्नर्स. ठीक है, okay, so we have to compare the vertex, that are the corners. What are the vertex here? Vertex here are actually nothing but ABCD. जो corners हैं उनको हम vertex कहते हैं. तो अगर हम देखें पहले वाली शेप में हमारे पास 4 vertex है, like A, B, C and D. ये हमारे पास पहली शेप में 4 वर्टेक्स है. अब मुझे कंपेयर करना है कि जो यहाँ पे वर्टेक्स है वो दूसरी शेप में किसके बराबर है. ठीक है, whenever doing vertex आप वर्टेक्स की हेडिंग भी डाल सकते हैं. This will make your work a bit nice. ठीक है, now I'm going to compare the vertex here. Let's start from A. जो यहाँ पर A है, जो यहाँ पर A है वो दूसरी शेप में A कहाँ पे होगा? Who can tell me? मैंने आपको माइक्स ऑन कर दिए. You can speak now. A over here is equal to which side here? Very good. Very nice. Side A is equals to W on the next shape. बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सेम कॉर्नर है, बस ऐसा हुआ कि शेप को थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया. ठीक है, side B on the shape is equals to which side over there? Side B here. Side B is equals to which side there? X. Very good. So B is equals to X. एरोज कुछ ऐसे बनते हैं. ठीक है, एरोज का ख्याल रखना है. इसका मतलब W A के बराबर है, A W के बराबर, W A के बराबर है, B X के बराबर और X B के बराबर है. Now, letter C is equal to which letter on the next? Very good. Very good. So Y. Now, letter D is equals to which letter on the next shape? Z. Very good. ये तो करके भी दिखाया हुआ है. You can tell it, but then if you are not given anything, you must know how to do it. तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, वर्टेक्स कंपेयर हो गए. अब वर्टेक्स के बाद हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, मुझे कौन बताएगा? Who can tell me this? After vertex, what will compare? साइज कंपेयर करेंगे. साइज में क्या होता है, हमारे पास 2 चीज आती है.
पहली चीज हमारे पास एंगल्स है. द फर्स्ट थिंग इज द एंगल्स. सो लेट्स कंपेयर द एंगल्स. अब एंगल्स में एक बात याद रखें, हम लोग वो एंगल्स कंपेयर करेंगे जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है. वी विल नॉट कंपेयर दोज एंगल्स विच आर नॉट गिवन टू मी. फॉर एग्जाम्पल, इन फर्स्ट फिगर वी आर गिवन एंगल बी. एंगल बी हमें यहाँ पर दिया है, तो मुझे बताएं इट्स 80 डिग्री. नाउ अगर यहाँ पे एंगल बी इज 80 डिग्री, तो इस शेप में एंगल बी कहाँ पे होगा? हु कैन टेल मी दैट? जिन्होंने पहले, बिल्कुल जिन्होंने पहले वर्टेक्स निकाला होगा ना उनको पता होगा. जाहिर सी बात है, अगर ये बी है तो उस शेप में बी कहाँ पे? एक्स पे. तो अगर बी पे एंगल 80 डिग्री बन रहा है, तो 80 डिग्री इन दिस फिगर विल बी, वेयर विल इट बी? It will be at x. So what we are going to write is angle B is equals to angle x is equals to 80 degree. This is the way we write our comparison. Is it clear to you all? Any problem class? This is something very very important. पहले देखिए, पहले जिन जो पहले vertex निकाल लेते हैं ना, it will make the angles will be very easier for them. वर्टेक्स इसलिए पहले नहीं रखा है क्योंकि पहले अगर वर्टेक्स निकालेंगे हमारे लिए एंगल्स निकालना भी आसान हो जाएगा, हमारे लिए साइड्स भी निकालना आसान हो जाएगा. सो वर्टेक्स आर द मेन थिंग, ठीक है. अब अगर हम देखें इस शेप में इस बी के अलावा और कोई एंगल हमें नहीं दिया हुआ है. अब हम आएंगे अपनी दूसरी शेप की तरफ. हमें एंगल वाई पे, सॉरी या वाई वर्टेक्स पे हमें एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है. सो वी आर गिवन एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब मुझे सोचना है कि वो कौन सी जगह होगी इस शेप में जहां पर 60 डिग्री होगा. अगर यहाँ पे एंगल y पर है तो यहाँ पे किस शेप पे होगा? C पे होगा. बहुत बिल्कुल सही. कॉमन सेंस की बात है कि अगर y है यहाँ तो ये y किसके बराबर है? बिल्कुल C के बराबर है. तो जो एंगल y पे बनेगा वही एंगल C पर भी बनेगा. सो angle y is equals to angle C is equals to 60 degree. This is the way you do it. अब angles हमारे compare हो गए, समझ में आ गया सबको? Any problem here class? Keep in mind हम लोग से वही angles compare करेंगे जो हमारा concern है, जो हमारी जिनको हमें जो हमें दिए हुए. और दूसरी बात ये कि मैं पहले से ही बता दी कॉन्ग्रुएंट है. मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है कि दोनों शेप बिल्कुल बराबर है, इनके वर्टेक्स भी सेम है, इनके साइड्स भी सेम है और इनके एंगल्स भी सेम है. जब हम पहले हम जो भी कुछ कर रहे हैं इसी बात की बिना पे कर रहे हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, हमने पहले वर्टेक्स कंपेयर किए, वी कंपेयर द एंगल्स, और एंगल्स के बाद हम लोग क्या कंपेयर करने वाले हैं? व्हाट विल वी कंपेयर आफ्टर द एंगल्स? यस, साइड्स. आई एम गोइंग टू erase the board here. So comes the side here now. Sides. So you can see that sides are here. अब मुझे पहले अपने किसी भी शेप को चूज कर, या तो ये शेप या तो ये शेप चूज कर ले, और चूज दिस शेप. Which shape do you want to choose? A B C D or W X Y Z? Okay. Choose any one shape और आप उसके चारों साइड्स के नाम लिखें. चारों साइड्स के नाम लिखें. ये फर्स्ट साइड है, सेकंड साइड है, थर्ड साइड, फोर्थ साइड. तुम क्या करेंगे? पहले हम चारों साइड्स के नाम लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट साइड इज ए बी, सो आई एम गोइंग टू राइट ए बी. सेकंड साइड इज बी सी, सो आई एम गोइंग टू राइट बी एंड सी. थर्ड साइड इज सी डी, तो हम लिखेंगे सी एंड डी. Fourth side is D and A, so I'm gonna write D and A. Please make sure कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आप तैयारी करके रखें, क्योंकि मैं इस वीक में किसी भी दिन आपका शॉर्ट टेस्ट लूँगी. So you have to be prepared. याद रहे कि कल का दिन आपके पास है, उसके बाद मैं किसी भी दिन आपका टेस्ट ले सकती हूँ.
जितना भी मैंने ऑनलाइन कवर करवाया है, यू मस्ट नो इट वेरी वेल, ठीक है। हमने पहले क्या किया, पहले मैंने एक शेप चूज की, शेप चूज करने के बाद आफ्टर चूजिंग अ शेप आई रोट ऑल द फोर साइड्स। अब मुझे इन साइड्स को कंपेयर करना है विद द सेकंड शेप। जो यहाँ पे ए बी है, जो साइड, द साइड ए बी इज इक्वल टू विच साइड ऑन दिस शेप? हु कैन टेल मी दैट? Okay, good. So side AB is equal to side WX. So AB is equals to WX. And what is WX here? What is WX here? Look at it carefully. What is 4 centimeters? No, it's not 2. It's actually 4 centimeters. So अगर हम देखें ये ए बी साइड एंड दिस डब्ल्यू एक्स आर द सेम एंड व्हाट इज द वैल्यू हियर? इट इज 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर्स होगी, ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी। नाउ वी आर डन विद ए बी, लेट्स कम टुवर्ड्स साइड बी सी। यहाँ देख के बताएं क्या, यहाँ देख के बताएं साइड बीसी में, BC, side BC is equals to which side on the next shape? Side y x, actually x y, ठीक है। y actually इसको x y, क्योंकि देखिए BC and x y, who is this? Kindly behave. All right, so BC is equals to x y. Are we given any value? क्या हमें कोई वैल्यू बताई गई है साइड की? हमें यहाँ पे कोई भी साइड नहीं बताई हुई है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट साइड CD। सो CD इज राइट हियर। CD, साइड CD किस साइड के बराबर है यहाँ पे? Someone, okay, Hamza, please. Okay, good. So CD, side CD is equals to YZ, क्योंकि देखते कैसे हैं, so is equals to Y and Z. Coming towards the next side, side DA, side DA किस साइड के बराबर है on the next figure? I want someone else to answer now. Muskan, are you there? Can you hear me? Side DA is equals to which side here? WZ. Very good. But you will call it ZW, क्योंकि देखिए मैंने जब DA कहा है तो आप उसको ZW कहेंगे। is equals to ZW। मुझे बताएं, इसकी कोई वैल्यू बताई भी है मुझे ZW की? ZW नहीं बताई भी, लेकिन मुझे AD का पता है, AD is what? AD is 2 centimeter, so is equals to 2 centimeters। इस तरीके से आप लोगों ने वर्किंग को शो करना है। समझ आ रही है बात? जिनकी वैल्यू दी हुई है उनको इस तरीके से कंपेयर करेंगे। दैट्स अप विद द आंसर। इस तरीके से हम काम करते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया। समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम? दैट्स इट। ये हमारा 4 सेंटीमीटर इसलिए लिखा है कि अगर हम यहाँ पे देखें ए बी, साइड ए बी ये रही, यहाँ पे जो साइड ए बी है इस शेप में किस साइड के बराबर है? इट्स इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। और डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या बताई हुई है? 4 सेंटीमीटर। एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ओके, सो लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको देख के बताना है, यू हैव टू लुक एट इट एंड यू हैव टू टेल इट, ओके।
The next question is, are the following pairs of triangle congruent? क्या दोनों शेप्स या दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? अब हमें नहीं बता रहे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, अब उनको भी नहीं पता कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट. इफ सो, एक्सप्लेन योर आंसर. कह रहे अगर है तो व्हाई, एंड राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. और फिर बता दे, पूरा स्टेटमेंट लिखे. अब स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं कि फला फला शेप इज कॉन्ग्रुएंट टू फला फला शेप. दैट्स द वे वी राइट द स्टेट. ठीक है. सो हमें पहले क्या करना है, वी हैव टू डू सम थिंग्स. फर्स्ट थिंग, वी हैव टू टेल देम दे आर कॉन्ग्रुएंट. हम कैसे बताएंगे, हम उस पर टेस्ट करेंगे. टेस्ट हम कौन से करेंगे, पहले हम वर्टेक्स चेक करेंगे, देन वी विल चेक दी then we will check, sorry, first we'll check the shape, second we'll check the vertex, third we'll check the size. In size we will check two things, shape, angles and the sides. After doing these four steps, four tests, we will tell them if they are congruent or not. Then we will explain our answer by writing a statement and write down the statement of congruency. If not, explain your answer. अगर नहीं है तो बताएं क्यों नहीं. ठीक है. So we'll do the first part, part A. Let's check it out if they are congruent or not. So let's do it. You can see we are having a triangle, triangle ABC and triangle QPR. ठीक है. अब मुझे अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पर पहले फर्स्ट स्टेप कंपेयर करने के लिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज आई नीड टू कंपेयर द वर्टेक्स. So let's compare the vertex first. So vertex, कोई भी एक शेप चूज करें, चूज एनी वन शेप, आइदर शेप ABC और आइदर शेप PQR और QPR. कोई भी एक शेप अपनी मर्जी की चूज करें और उसके कॉर्नर्स के नाम लिख दें. आई लाइक ABC, तो यहाँ मैंने ABC को चूज किया और मैंने इसके कॉर्नर्स के नाम लिख दिए, लाइक A, B and C. अब मुझे कंपेयर करना है, मुझे बताना है कि कौन सी साइड किस साइड के बराबर है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम A. हम बात करते हैं कि साइड ए इज इक्वल टू विच साइड ऑन दिस ट्राइंगल. कौन बता सकता है साइड ए किस साइड के बराबर है? साइड ए किस, ये जो साइड है ये किस साइड के बराबर है? ठीक है. आप यहाँ पे एंगल्स को भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर साइड्स को भी देख सकते हैं. ठीक है. सो इट्स इक्वल्स टू एंगल P. Side B is equals to which side here? Side B is equals to side Q. Side C is equals to which side here? Very good. So it's GAP होगा. Side R. Side A is equals to side P, side B is equals to side Q and side C is equals to side R. फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे वर्टेक्स कंपेयर कर लिया और मुझे पता है कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा A पे वही एंगल P पे भी बनेगा, जो एंगल B पे बनेगा वही एंगल Q पर भी बनेगा और जो एंगल C पे बनेगा वही एंगल R पर भी बनेगा. So because the vertex are the same, angles भी same होंगे. Now coming towards the second part, after comparing the vertex, what will we compare? We will compare the angles. So let's compare the angles. Choose any one shape. कोई भी एक शेप चूज कर लें. मैंने पहले चूज की थी ABC, तो अभी भी मैं एंगल चूज करूंगी शेप ABC के. ठीक है. So here you can see we have three sides like angle A, angle A, angle B, and angle C. We have three angles here, right here with us. Now, अब यहाँ देख के बताएं जो एंगल A का जो एंगल है वो इस शेप में किस एंगल्स के बराबर है? वेरी गुड, वेरी गुड.
एंगल पी, एंगल बी, एंगल बी का जो एंगल है, एंगल बी का जो एंगल है वो एंगल किस शेप में किस एंगल के बराबर है? आर यू श्योर? गुड, वेरी गुड, एंगल क्यू। और वो किसके बराबर है? उसकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू? इट इज 70 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? एंगल पी की वैल्यू क्या थी? इट वाज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, now last one, angle C. Angle C on this shape is equal to which angle on the other shape? Very good. Angle R, and what is the value? 50 डिग्री। जब आपने कंपैरिजन कर लिया होगा तो आप देखेंगे कि आपके वर्टेक्स बिल्कुल मैच कर होंगे, यानी आपने जो ऊपर किया था A इज इक्वल टू P, B इज इक्वल टू Q और C इक्वल टू R, सब मैच करा होगा। तो अगर आपका सब कुछ मैच करे मतलब आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ठीक है? आपके तमाम स्टेप्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, आपस में मैच करने चाहिए, ठीक है? This is how we compare the angles. अब last step है, after comparing the angles, what do we compare? We compare the sides. दोबारा से हम कोई भी एक शेप चूज करेंगे और उसकी साइड्स को लिखेंगे। मैंने शुरू में ABC को चूज किया था, दोबारा से मैं ABC को ही चूज करूंगी। So here I have three sides, AB, BC and CA. So I'm going to write three sides, AB, BC and CA. Now let's compare. Side AB is equals to which side over here? Side AB here is equals to which side here? Exactly, it is what? It is actually, अच्छा यहाँ पे गौर करके बताना है, देखो यहाँ पे A to B है ना, एंगल A पे 60 डिग्रीज बन रहे हैं, एंगल B पे 70। तो यहाँ पे वैसे बताना है, मैं देख रहा 3 सेंटीमीटर्स तो है, लेकिन इट हैज टू गो फ्रॉम 60 टू 70 डिग्री। तो दिस PQ, so एंगल AB, साइड AB इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है? क्यों मैंने से क्या, दोबारा से देख लें। अगर हम देखें एंगल ए पे यहाँ पे 60 डिग्रीज बन रहा था और एंगल बी पे 70 डिग्री, तो हमें उसी तरीके से काम करना। अगर मैं क्यू पी बोलती तो 70 ऊपर बन रहा था और 60 नीचे, तो ये मैच नहीं करता। सो आई सेड इट पी क्यू if I'm going it from down to up, as this will show the coordination, ठीक है? Now, so angle PQ, sorry, side PQ is equals to how much? Side PQ की वैल्यू क्या है? 3 centimeters. What is the value of side AB? Side AB is also 3 centimeters. Coming towards the next part, side BC. Side BC is how much? 3.39. यहाँ पे side BC किस side के बराबर है? QR. Very good. So QR again दोबारा से follow करेंगे, हर चीज देखेंगे. So it is Q to R. So QR is equal to how much? What is the length? What is the side? What is the value of the side? It is actually 3.39. Also, BC पे 3.39. So 3.39 centimeters. Large side, that is A and C. A and C is equals to which side over here? It's equal to, very good. It's actually R and P. Good. So R P, which is equals to 3.68 सेंटीमीटर। नाउ हमने देखा कि वर्टेक्स जब मैंने कंपेयर किए, जब मैंने एंगल्स कंपेयर किए और जब मैंने साइड्स कंपेयर की, सब कुछ सेम हो रहा है। सो लास्ट में मैं स्टेट में लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी ट्राइंगल ए बी सी। सो ट्राइंगल ए बी सी congruent है यानी सेम है। So for that congruency sign, I'm going to put 3 dashes. Then to which triangle? To triangle P, Q and R. So P
triangle, triangle, P, Q, and R. I'm going to write it again down. So triangle, P, Q, and R. This is the way we actually calculate the congruency. Okay? Your homework is that you're gonna do practice now number 3 part 1 only part 1. Alright? वर्क एग्जाम्पल नंबर थ्री सॉरी प्रैक्टिस नंबर थ्री आप लोगों ने कॉपी में करना था और वर्क सॉरी प्रैक्टिस नाउ नंबर टू आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है एंड प्रैक्टिस नाउ नंबर थ्री पार्ट वन only to be done in the copies. That's it with the class. I hope you all understood everything. Take care. Allah Hafiz.